کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم قوانین 2019 میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ 60 لاکھ روپے سالانہ آمدن والے ریسٹورانٹس میں بھی الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم لازمی قرار دے دیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے کی گئی ترامیم فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ ترمیم سے قبل 1 کروڑ یا زائد آمدن والے ریسٹورانٹ میں الیکٹرانک انوائس سسٹم لازمی تھا۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، بتائے گا اس ترمیم کے حوالے سے؟ جی بالکل، چونکہ پی آر اے نے الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم 2019 کے قوانین میں ترمیم کی ہے، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم قوانین 2019 رول نمبر 3 میں ترمیم کی ہے۔ 60 لاکھ سالانہ آمدن والے ریسٹورنٹس کو الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کروانا لازم قرار دے دیا گیا، جبکہ ترمیم سے قبل 1 کروڑ یا اس سے زائد آمدن والے ریسٹورنٹس میں سسٹم کی تنصیب کروانا لازم تھی، اور اس وجہ سے دیگر تمام خدمات کے لیے انوائس مانیٹرنگ کی حد 10 ملین روپے برقرار رہے گی۔ پی آر اے کی جانب سے کی گئی ترمیم فوری طور پر نافذ العمل کر دی گئی ہے۔ جی فوری طور پر نافذ العمل کر دی گئی ہے، بہت شکریہ عمران۔ پی ٹی آئی نے کل 11 بجے پنجاب اسمبلی کے باہر اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی اعجاز شفیع اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئندہ کے لاہے عمل پر بات چیت ہوگی۔ آئندہ کے لاہے عمل پر بات چیت بھی ہوگی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لیاقت علی سے۔ جی بتائیے لیاقت۔ بالکل، پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی انہوں نے اپنی جو عوامی اسمبلی اس کا اجلاس کل پنجاب اسمبلی کے باہر صبح 11 بجے طلب کیا ہے۔ میاں اعجاز شفیع جو کہ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ہیں، وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر اس اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ تو اس میں فارم 45 کے تحت جو جیتنے کے دعوے دار ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے شریک ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے 108 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئندہ لاہے عمل پر اس اجلاس میں بات چیت کی جائے گی۔ جی آپ کا شکریہ لیاقت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حق کی فتح ہوئی ہے۔ نشستیں واپس ملنے سے پنجاب اسمبلی میں ہماری 140 سیٹیں ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا رد عمل، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں فارم 45 والی نشستیں بھی واپس لیں گے۔ آج جو ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے جس میں حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، باطل کو شکست ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں مل گئی ہیں ہمیں واپس، اس سے پنجاب اسمبلی میں ہماری 140 سیٹس ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی فارم 45 کی سیٹیں بھی واپس لیں گے جو کہ انہوں نے ہم سے چھینی ہوئی ہیں، اور ایک جیلی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو کل کا اجلاس بھی انشاءاللہ ہم اپنی حقیقی اسمبلی کا بڑے شد و مد کے ساتھ اور اسی طرح ہم کریں گے کہ وہ حقیقی اسمبلی کا اجلاس ہے۔ تو میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی کو مزید 27 سیٹیں ملنے کا امکان۔ خواتین کے لیے 24 اقلیتوں کے لیے 3 نشستیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی کل 108 سیٹیں ہیں۔ 27 سیٹیں ملنے کے بعد ایوان میں پی ٹی آئی اراکین کی تعداد 135 ہو جائے گی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت علی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی کو مزید 27 سیٹیں ملنے کا امکان ہے۔ خواتین کے لیے 24 جبکہ اقلیتوں کے لیے 3 نشستیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی کل 108 سیٹیں ہیں اور 27 سیٹیں ملنے کے بعد ایوان میں پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 135 ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی کو مزید 27 سیٹیں ملنے کا امکان ہے اور خواتین کے لیے 24 اقلیتوں کے لیے 3 نشستیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے کل 108 سیٹیں ہیں اور 27 سیٹیں ملنے کے بعد ایوان میں پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 135 ہو جائے گی۔ صنم جاوید کی گوجرانوالہ کے مقدمے میں گرفتاری کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا صنم جاوید کو جیل سے فوری رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ صنم جاوید کی گوجرانوالہ کے مقدمے میں گرفتاری کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا صنم جاوید کو جیل سے فوری رہا کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔
जस्टिस असजद जावेद घुराल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। तफ्तीशी ऑफिसर्स की जानिब से दरख्वास्त गुजार को बार बार एक ही नवैयत के मुकदमे में नामजद करना बदनीति को ज़ाहिर करता है। फैसले में ऐसा कहा गया, जबकि दरख्वास्त गुजार को रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निज़ाम को शिकस्त देना है। फैसले में यह भी कहा गया है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और गुजरांवाला ने जेल में होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए, जबकि डिप्टी कमिश्नर के किरदार सख्त कार्रवाई का कहते हैं, लेकिन अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अदालत उम्मीद करती है डिप्टी कमिश्नर आइंदा अदालती अहकामात को मायूस नहीं करेगी। जिस्मानी रिमांड देने वाली अदालतों को भी रिमांड देते हुए आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ को सामने रखना चाहिए। फैसले में ये भी कहा गया। लाहौर में बारिश ने अपना भरपूर जलवा दिखाने की ठान ली। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी पर मजीद बताएंगे सुहेल कैसर। देखिए, बारिश ने तो आज जैसे ठान ली है कि वो अगली पिछली तमाम कसरें पूरी करके ही रहेगी कि वक्फे से बारिश का सिलसिला बदस्तूर लाहौर भर में चल रहा है, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश। और इस दौरान अगर थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाती है तो कुछ पानी की जो मिकदार मुख्तलिफ इलाकों में जमा है उसमें मामूली सी कमी हो जाती, लेकिन इतनी ज़्यादा कमी नहीं कि उसको काबिल इत्मीनान करार दिया जाए कि उस दौरान फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे इस वक्त भी आप देखें कि बूंदाबांदी सी चल रही है, जिसकी वजह से हमें छतरी लेनी पड़ रही है अपने जो नाजरीन हैं उनको मौसम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। सो ये सूरत हाल है जी लाहौर में। और आज इतनी शदीद बारिश इसलिए हुई कि जो सिस्टम अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ और उसने फिर पंजाब में प्रिवेल किया, ये दरअसल एक सिस्टम बहरा अरब से आया और दूसरा बे ऑफ बंगाल से आया, और दोनों सिस्टम जब एक साथ पाकिस्तान में पहुँचे तो उसके नतीजे में आज शदीद और मूसलाधार बारिश हुई है। और ये सिलसिला अभी तक थमने वाला नहीं है, बल्कि ये बदस्तूर इसी तरह वक्फे से चलता रहेगा। और इस बारिश ने तो आज जैसे यूँ जान लीजिए कि जो तमाम दावे हैं एक मरतबा फिर उनको बड़ी हद तक गलत साबित कर दिया है कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं, कहीं तमाम मशीनरी फ़ाल है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हस्बे रवायत वही इलाके, वही सूरत हाल, वही बारिश, वही दावे, वही हुकाम के लंबे लंबे बूट पहन कर मुख्तलिफ नशीबी इलाकों के दौरे। तो ऐसे लगता है कि जैसे हम एक एक्शन रीप्ले देख रहे हैं, जो हम हर मानसून में जो सूरत हाल देखते हैं, एक मरतबा फिर उसी सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। शहर में होने वाली बारिश से जलथल एक हो गया। ताजपुरा, फतेहगढ़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, नकासी आब न होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। आज बिल्कुल, आज शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस मूसलाधार बारिश के बायस शहर में जो है वो जलथल एक हो चुका है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और गलियां, मोहल्ले, मेन रोड और सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे ये कोई नहर या जो है वो नदी नाला नहीं है, ये मेन रोड है और ये केनाल ताजपुरा स्कीम का इलाका है, जहाँ पर हर जानिब जो है वो पानी पानी ही दिखाई दे रहा है। बच्चे जो हैं वो तो जो है वो इस पानी में इंजॉय कर रहे हैं और नहर समझकर जो है वो इस पानी में नहा रहे हैं, मगर जो अहले इलाका हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पानी जो है वो उनके घरों में दाखिल हो चुका है, दुकानों में दाखिल हो चुका है और घरों से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब वासा और लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि मानसून के इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, मगर जैसे ही जो है वो मानसून की बारिशें शुरू हुई हैं तो इंतजामात जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। लोगों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बायस से बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर है और लेस्को के 330 से ज़ायद फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो बिजली से महरूम हैं। अहले इलाका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर, बताइएगा क्या सूरत हाल है पानी की इधर? मेरे घर के अंदर इतना पानी है, मेरी होंडा सिटी में पानी चला गया, किसी ने कोई काम नहीं कर रहा, कोई, चाहे वो पीटीआई है चाहे वो नून लीग है, कोई काम नहीं करता। 18 से लेके इस इलेक्शन तक कोई हमारे घरों में नहीं आया। हर साल यही होता है, हर साल यही होता है, कोई नहीं सुनने वाला, सब बकवास है ये। आज बिल्कुल अहले इलाका जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि घरों में पानी दाखिल हो चुका है और जो उनकी कीमती अशिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया हैं, वो जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं और वो ख़राब हो चुकी हैं। अभी एक जो है वो शहरी यहाँ पे मिले हैं, उनका कहना है कि मेरी गाड़ी में भी जो है वो पानी चला गया, जिसकी वजह से
वो मुतासर हुई है। तो सूरत हाल ये है कि अहले इलाका का कहना है कि हर साल यहाँ पर जो है वो पानी की यही सूरत हाल होती है। जी शुक्रिया। शहर लाहौर तालाब का मंजर पेश करने लगा। सुबह से जारी बारिश के बायस हाजी कैंप में पानी जमा हो गया। इंतजामिया ताहाल पानी निकालने में नाकाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सामिया सईद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही मूसलाधार बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम तो खुशगवार और ठंडा ज़रूर हो गया है, लेकिन शहर के जो मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं ख़ास तौर पर और अहम शहराहें हैं जो वो यहाँ पर इस वक्त तालाब का जो है वो मंजर पेश कर रही हैं। सुबह सवेरे से क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक इंतजामात बर वक्त ना होने की वजह से यहाँ का इलाका जो है वो डूबा हुआ है। उसके अलावा गाड़ियाँ भी जो हैं वो आधी आधी डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और ये पूरा इलाका जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर इंतजामात जो है बर वक्त ना होने की वजह से, मुतल्लिका इदारों की गफलत की वजह से इस वक्त भी ये जो एरिया है हाजी कैंप का तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि अभी आइंदा आने वाले चंद घंटों में भी जो है वो बारिश जो है वक्फे से बरसेगी। और देखना ये है कि यहाँ की जो इंतजामिया है वो इस मामले को किस तरह से जो है वो हैंडल करती है। आपका शुक्रिया सामिया। शहर में मूसलाधार बारिश, LWMC के अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। सफाई ऑपरेशन के साथ नकासी आग यकीनी बनाने का अमल भी जारी। नूरजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बॉलीवुड, गुलबर्ग की शाहराहों पर सफाई ऑपरेशन जारी है। चेयरमैन LWMC की नकासी आग यकीनी बनाने के लिए सड़कों से प्लास्टिक बैग हटाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। बताइए इमरान। जी बिल्कुल, मानसून की बारिश के बाद जो है शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया जा रहा है और इसी सिलसिले में चौकी के एरिया को भी चेक किया जा रहा है। सफाई सुथराई के हवाले से नूरजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, सर्कल रोड, फोर्ट रोड, आजमसाद मार्केट, आज़ादी चौक पर सफाई टीमें जो हैं वो सफाई ऑपरेशन में मुशर्रिक हैं और इसी सिलसिले में जो है नकासी आपको यकीनी बनाने के लिए 6000 से ज़ायद वेस्ट कंटेनर्स मामूल के मुताबिक क्लियर किए जा रहे हैं और इसी टाउन मैनेजर्स फील्ड में वर्कर्स की 100% हाजिरी को भी यकीनी बना रहे हैं। इसी सिलसिले में सिविल WMC बाबर साहब जिनका कहना है कि इस वाले से तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद हैं और शहर में मुसलसल बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन को दोबारा से जो है जारी किया गया और तो तमाम इलाके जो हैं और मेन शहराएँ जो हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया इमरान। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में बारिश का 31 साला रिकॉर्ड टूट गया है। 7.5 घंटों में ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 302 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 170, अपर मॉल 128, मुगलपुरा में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो आपको बताया जा रहा है 7.5 घंटों में ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 302 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लक्ष्मी चौक 170, अपर मॉल 128, मुगलपुरा में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग 103, इश्तर टाउन में 162, समनाबाद 153, करतबा चौक में 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि लाहौर में बारिश का 31 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर लाहौर में 31 साला बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 302 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, गाड़ियां रुक गई हैं जबकि बाइक्स चलाना भी मुश्किल हो चुका है। ताजपुरा, हरबंसपुरा, फतेहगढ़ के इलाकों में पानी ही पानी। शालामार कैनाल बैंक स्कीम की गलियों में पानी का कब्जा है जबकि सब्ज़ार मेन बुलेवार्ड पर बारिशी पानी का बसेरा है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 6:44 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी भी शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम इस सिलसिले में जो दादोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक लाहौर में आज बारिश का गुज़िश्ता 31 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है और 7.5 घंटों में ताजपुरा के इलाके में अब तक 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से आज के दिन में ही मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। इसके साथ साथ शहर भर के 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये मौसमियाती तब्दीलियों और मानसून की वजह से शहर लाहौर इस वक्त बारिशों की जद में है। गुज़िश्ता बरसों के अदादोशुमार देखे जाएं तो गुज़िश्ता बरस लाहौर में 291 मिलीमीटर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि गुज़िश्ता बरस ही लाहौर में दूसरी सबसे ज्यादा 256 मिलीमीटर बारिश थी जो 26 जून को रिकॉर्ड की गई। इसी तरह साल 2022 में लाहौर में सबसे ज्यादा 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और सन 2018 में लाहौर में 288 मिलीमीटर होने वाली बारिश ने
तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन इस साल गुज़िश्ता 31 सालों के जो रिकॉर्ड हैं वो भी टूट चुके हैं और सबसे कम वक्त में लाहौर में 315 मिलीमीटर ताजपुरा के इलाके में ये बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो वहाँ पर भी बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल की है। जिस तरह गुलबर्ग का इलाका है जहाँ पर 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लक्ष्मी चौक में ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।